بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات بلا تاخیر بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نظرانے عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ شفیق صاحب قبلہ ازہری موجود ہے الحمدللہ. بہت ہی شاندار خطاب نایاب آپ تمام حضرات نے ان کا سماعت کیا. اللہ ان کے بولنے میں اور برکتیں عطا فرمائے. زبان میں مولا ہم سب کے تاثیر پیدا کرے, جہاں بھی جائیں دین کا کام کریں, ہے کہ نہیں؟ اور بس یہی کہیں تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بس ہمارے دل میں تو یہی ہے بس ہم سرکار کی تعریف کریں, سرکار کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے, اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کچھ نہیں. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے پورے کا پورا قرآن شب قدر میں اتارا. وہ شب قدر جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کی سیدھی سی بات ہے, جس رات میں اللہ نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا, اس رات کا عالم یہ ہے کہ وہ رات اگر بندہ حاصل کر لے تو اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. بلا تشبیہ و تمثیل جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا, پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر ایک مرتبہ لوح محفوظ سے نازل کیا گیا. لیکن حضرات گرامی اس کے بعد تقریباً 23 سال تک جبریل امین کے واسطے سے ہمارے سرکار پر قرآن نازل ہوتا رہا. لیکن پورے کا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر صرف ایک رات میں اتارا. اور اس رات کے بارے میں معاملہ یہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں 7 راتوں میں اللہ نے پورے کا پورا قرآن نازل کیا. وہ رات شب قدر ہے, اس رات میں جاگنا عبادت ہے, اس رات کو حاصل کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. بلا تشبیہ و تمثیل جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا, اس رات کا عالم یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ہمیں جس رات میں قرآن نہیں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لایا ہے, جس رات میں قرآن نہیں اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لایا ہے, جس رات میں طٰہٰ و یاسین دنیا میں تشریف لایا ہے, ذرا اندازہ لگاؤ اگر اس رات میں جا کر کے آپ عبادت کریں گے, اگر سرکار کے میلاد میں جا کر کے آپ خوشی منائیں گے, اگر اس رات میں آپ درود پاک کی کثرت کریں گے, اگر اس رات میں آپ نوافل پڑھیں گے, قسم خدا کی یاد رکھنا یہ ہمارے بزرگان دین کا اقوال ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے نہیں بلکہ لاکھوں مہینوں کی عبادت سے زیادہ. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہزاروں مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. حضرات گرامی سرکار اس دنیا میں تشریف لائے, چاروں طرف خوشحالی کا ماحول تھا. بریلی کے امام کے خلیفہ بول پڑے, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام. اور حضرات گرامی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے سرکار کی ولادت ہوئی, خرج منی نور لما ولدت ہو خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام. جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی نا, میرے اندر سے ایک نور نکلا, اور اس نور کی چمک ایسی تھی کہ میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا, شام کی بلڈنگوں کو دیکھ لیا. اگر عاشق ہے تو عاشق کی طرح سنے, یہ سرکار کے میلاد کو میں بیان کر رہا ہوں, اور سرکار کے میلاد کو سننا اور اس محفل میں شرکت کرنا یہ باعث صد افتخار ہوتا ہے. بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے, اس بندے کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے جو سرکار کے میلاد میں شرکت کرتا ہے. جو بندہ نئی نئی آرزو رکھتا ہے, اگر وہ تمنا جائز ہوتی ہے, میلاد پاک کی محفل کی برکت سے اللہ اس جائز تمنا کو پوری فرما دیتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے اندر سے ایک نور نکلا, اس نور کی چمک کا عالم یہ تھا کہ اس سے کائنات کا ذرہ ذرہ تو روشن ہی تھا. میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلوں کو دیکھ لیا, جمیل قادری کی نظر پڑی, بولے خلیفہ اعلیٰ حضرت روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھے ملک شام, واہ واہ کیا چاند نکلا
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। सरकार पैदा हुए मक्के की सरजमीन पर। हज़रात किराम, आप खतरा शुदा पैदा हुए। बच्चे पैदा होते हैं तो खतरा बाद में होता है, लेकिन सरकार की शान मुलाहिजा करें। मौरखीन फरमाते हैं सरकार की पैदाइश हुई तो आप खतरा शुदा पैदा हुए। बच्चे पैदा होते हैं, उनके नाम का कलेक्शन उनके बाकायदा माँ से होता है, लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे आका पर। बचपने के माहौल में जब बसाहिर इस कायनात में अल्लाह का महबूब तशरीफ लाया तो आप नाप बुरीदा पैदा हुए हैं। आपकी नाप पहले से कटी हुई थी। हज़रात गिरामी, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। आपने सर को सजदे में रखा। रब्बे हबली की सदा आई। जमील कादरी ने उसकी मंजर कशी कर दिया। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, अल्लाह का महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। चारों तरफ खुशी का माहौल है, चारों तरफ बड़ा अच्छा माहौल बन चुका है। आसमान को भी अल्लाह ने सजाया है, जमीन पर हरियाली का माहौल बन चुका है, चारों तरफ गुंचे चटक रहे हैं। जमील कादरी बोल पड़े, रहा ना गया। इरशाद फरमाते हैं और इस अंदाज में बारगाह रिसालत में खराज कीरत पेश करते हैं। गुंचे चटके, फूल महके, शहनशाही गुलगुले, गुलगुला बागे अहद का अस्सलातु वस्सलाम, गुलगुला बागे अहद का अस्सलातु वस्सलाम। आज अल्लाह का महबूब मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाया है। सारे बुत जमीन पर आ गए। बाकायदा लोगों ने बुतों को दोबारा खड़ा किया, लेकिन फिर बुत जमीन पर आ गए। बुत को फिर खड़ा किया गया, लेकिन बुत फिर जमीन पर आ गए। हज़रात गिरामी, अंदाज को जब देखा है, बाकायदा उसकी मंजर कशी की गई। और सिर्फ यही नहीं कि काबे के अंदर 360 बुत जमीन पर आए थे, बल्कि कायनात में जितने बुत बने मौजूद थे और खाने में जितने बुत थे, आका की विलायत हुई, सारे के सारे बुत जमीन पर आ गए। बल्कि बाकायदा तारीख में आता है, काबे की दीवार के अंदर से आवाज आ रही थी, मुरिदल मुस्तफल मुख्तार अल्लज़ी दुलको बिही कुफ्फार व युताहिरु बिन इबादतिल असलाम व यामुरु बि इबादतिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम। आज मुस्तफा मुख्तार की दुनिया में आमद हो गई है। आज मुस्तफा मुख्तार की दुनिया में आमद हो चुकी है, जिनके हाथों से कुफ्फार को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। वो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वाले हैं, खाने काबा को बुतों से पाक करने वाले हैं। सारे जमीन पर आए और आने के बाद जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम के खलीफा की, बोल पड़े जमील कादरी, बुत शिकन आया ये कहकर, बुतों को तोड़ने वाला बुत शिकन आया ये कहकर, मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूठ कर कहता ठकाबाज। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज मिसबाही हज़री साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी हज़री साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, वक्त नहीं कि मैं तफसील से गुफ्तगू करूं, इसलिए कि हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी हज़री साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इसलिए हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ बस एक छोटा सा वाक़या सरकार के विलादत का मैं बयान करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू मुकम्मल होगी। 2-3 शेर नाज़ शरीफ के आप सुनेंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला का खुसूसी खिताब गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ तवज्जो के साथ। हज़रत आमना फरमाती है कि सरकार पैदा हुए तो सर को सजदे में रख दिया। रब्बे हबली उम्मती की सदा आई। सरकार मुस्कुराते हुए पैदा हुए, आप खतरा शुदा पैदा हुए, नाप बुरीदा पैदा हुए। हज़रात गिरामी, आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जरा अंदाज लगाएं सरकार की शान कितनी निराली है। लेकिन जब वही सरकार है हलीमा सादिया लेकर के उन्हें चली ना, हलीमा सादिया की गुर्बत का आलम तो ये था कि उनके पास घर में तेल नहीं था कि चिराग में डाल सके, ये गुर्बत का आलम था। उठनी का आलम ये था कि रास्ते में बैठ जाती थी। लेकिन हज़रात गिरामी, जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उस बचपन के माहौल में बरकत की सूरत में हलीमा सादिया की सवारी पर सवार होते हैं, कसम खुदा की सवारी की रफ्तार बढ़ जाती है। वही मोहल्ले के औरतें, इलाके की औरतें जो साथ में आई थी, उन लोगों ने कहा हलीमा सादिया जी वो गरीब आलम है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आने का आलम ये था कि तुम्हारी सवारी जगह जगह पर बैठ जाती थी और हमको रास्ते में रुकना पड़ता था। लेकिन आज आलम यह है कि आपकी सवारी बड़ी तेजी के साथ चलती जा रही है। क्या तुमने मक्के में जाने के बाद सवारी को चेंज कर दिया है? क्या तुमने सवारी को नया बदल दिया है? क्या तुमने सवारी नई खरीद ली है? हलीमा सादिया ने कहा था नहीं नहीं, सवारी तो नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया
है, इस पर बैठने वाला बदल गया है। इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है कि मेरी ऊँटनी के अंदर जान पैदा हो गई है और इतनी तेजी के साथ मेरी ऊँटनी आगे बढ़ती चली जा रही है। हलीमा सादिया के घर में आने के बाद तरह तरह के कमालात शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, हलीमा सादिया है, फरमाती है एक दिन मैंने देखा झूले के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत वाले बच्चे की सूरत में मौजूद है। मैंने देखा चौधरी का चांद बिल्कुल नमूदार है, बिल्कुल आबोताब के साथ शबाब के साथ आसमान पर है। लेकिन मैंने देखा कि बचपने के आलम में झूलने के अंदर, पालने के अंदर बाकायदा वो बरकत वाला बच्चा मौजूद है। मैंने गौर से देखा ना तो वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को कभी सिरहाने की जानिब करता है तो मैं देखती क्या हूँ कि आसमान में चांद भी बाकायदा उस तरफ जाता हुआ नजर आता है। जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को पाइती की जानिब करता है तो बाकायदा चांद भी पाइती की जानिब जाता हुआ नजर आता है। जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को दाहिनी जानिब करता है तो चांद दाहिनी जानिब जाता हुआ नजर आता है। जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाईं जानिब करता है तो चांद भी बाईं जानिब जाता हुआ नजर आता है। हज़रात गिरामी, जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की तो बरेली के इमाम पुकार उठे, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, ले गया तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा कौन को, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हज़रात गिरामी, छोटा सा वाक़या सुने, गुफ्तगू को खत्म कर दो। हलीमा सादिया के घर में बाकायदा वहां पर माहौल था, बाकायदा बनु साद कबीले के उस इलाके में माहौल ये था कि शाम का वक्त जब होता ना, असर का वक्त होता तो मोहल्ले की तमाम औरतें जो होती, उनके जो बच्चे होते, उन बच्चों को उनकी बड़ी बहनें उनको सजाती, सवारती, गोद में लेती और ले करके बाकायदा एक चबूतरे पर ऊंची जगह पर जाती और वहां पर जाने के बाद कहती, देखो मेरा भाई कितना प्यारा है, मेरे भाई की आंख कितनी प्यारी है, मेरे भाई के भाई मुबारक कितने प्यारे हैं, मेरे भाई की बाकायदा रुखसार कितने प्यारे हैं, मेरे भाई के बाल देखो कितने अच्छे हैं, मेरे भाई का हाथ कितना अच्छा है। हज़रात गिरामी, बस ये छोटा सा वाक़या गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है, तवज्जो के साथ आप सुनना। बाकायदा उस कबीले का ये माहौल था। और आज भी देखिए ना आपके मोहल्ले में, आज भी हमारे यहाँ जो बड़ी बहनें होती हैं अपने छोटे भाई को, जो छोटा भाई होता है ना, उसको सजाती हैं, संवारती हैं, उसको बाल में कंघी करती हैं, सब करती है कि नहीं करती? बड़ी बहनें छोटे भाई के साथ करती है और गोद में लेके जाती है। मोहल्ले में पहले तो माहौल था कि लेके जाती, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना प्यारा है। आज भी लोग लेकर के निकलते हैं। हज़रात गिरामी, वहां पर भी माहौल था। हलीमा सादिया की एक बेटी थी, नाम था हजरत शीमा, नाम था हजरत शीमा, जिनके वाक़यात है कि बाद में अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी हाजिर हुई थी और उन्होंने कलमा भी पढ़ा था, इस्लाम भी कबूल किया था। वो हजरत शीमा है, हलीमा सादिया की बेटी है, निस्बत के एतबार से, दुनियावी एतबार से बहन भी कहलाती है। बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने भी सजाया, सवारा, सवारने के बाद का अम्मी जान, मोहल्ले की सारी औरतें, सारी बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर के जाती है और बाकायदा उस चबूतरे पर बैठकर सारी बहनें अपने अपने भाई के हुस्न और जमाल के तस्करे करती है, अपने अपने भाई का हुस्न का तस्करा करती है, उनके जमाल का तस्करा करती है, उनके खूबसूरती का तस्करा करती है। ऐ अम्मी जान, आज मैं भी अपने निस्बती भाई को ले जाना चाहती हूँ ताकि ले जाकर के मैं भी इनके हुस्न और जमाल का तस्करा करूंगी, मैं भी इनकी खूबसूरती का तस्करा करूंगी। बाकायदा आपने सजाया, सवारा और सवारने के बाद बाकायदा हलीमा सादिया अम्मी जान से इजाजत लिया। इजाजत लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस बरकत वाले बच्चे को, उस बरकत वाले आमना के लाल को, उस अब्दुल्ला के लखते जिगर को, अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे को बाकायदा हज़रत शीमा जब लेकर के आगे बढ़ी ना, हलीमा सादिया फरमाती है, ऐ शीमा ऐसा करो, तुम इनके ऊपर एक चादर डाल लो, इसलिए कि चादर डाल करके बाहर निकलो। तुम जब यहाँ पर जाना, चबूतरे पर पहुंचना, जहाँ पर सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे करें ना, ऐ शीमा ऐसा करना, तुम रुक जाना, पहले सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे करेंगी, लेकिन सारी बहनें तस्करे कर लें, उसके बाद तुम ऐसा करना, इस बरकत वाले बच्चे के चेहरे के ऊपर से नकाब को हटा देना, चादर को हटा देना, फिर देखना कमाल क्या होता है। हलीमा सादिया ने अपनी बच्ची को संभाल दिया है। हज़रत शीमा उस बरकत वाले बच्चे को
लेकर के, आमना के लाल अब्दुल्ला के लश्कर जिगर को अपनी गोद में लेकर के, और उसके ऊपर बाकायदा नकाब को, पर्दे को डाल करके, चादर तकबीर को, चादर मुबारक को डाल करके आगे बढ़ती है। हज़रात गिरामी चलते चलते चबूतरे पर पहुंची। जब चबूतरे पर पहुंची ना, देखा सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न के तज़किरे कर रही थी। एक बहन कहती देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, दूसरी बहन कहती देखो मेरे भाई का होठ कितना प्यारा है, मेरे भाई का रुखसार कितना प्यारा है, मेरे भाई की आंखें कितनी प्यारी है, मेरे भाई के बाल कितने प्यारे हैं, मेरे भाई का हाथ कितना प्यारा है। सारी बहनें उस कबीले की उस चबूतरे पर इकट्ठा होकर अपने अपने भाई के हुस्न जमाल के तज़किरे कर रही थी, अपने भाई के हुस्न के तज़किरे कर रही थी, उनकी खूबसूरती के तज़किरे कर रही थी। हज़रात गिरामी अभी रास्ते में हज़रत शीमा है, रास्ते में चलती जा रही है। अरे यार कौन है जो सरकार के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता, सरकार के चेहरे का दीदार कौन नहीं करना चाहता। अरे यार चरिंदो परिंद प्यारे आका के चेहरे के मुश्ताक है, जानवर भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। ज़माने में इंसान तो इंसान है, जानवर भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहता है। कायनात में कोई ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह के रसूल के चेहरे के दीदार के मुश्ताक ना हो। आप वाक़या उठा करके देख लीजिए, हज़रत अबू सिद्दीक के अंगूठे में सांप ने डसा क्यों था, इसलिए कि 500 साल थे वो सांप गारे सौर के अंदर बाकायदा अल्लाह के रसूल के चेहरे के दीदार का मुश्ताक था, इसलिए अंगूठे को डसा ताकि अंगूठा हटे, प्यारे आका के चेहरे का दीदार हो जाए। कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? चरिंदों परिंद प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहता है, हैवान भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। सारे ज़माने के लोग प्यारे आका के चेहरे के दीदार के मुश्ताक है ऐसे आलम में। लेकिन दीदार कैसे हो? आज तो चेहरे पर चादर पड़ी हुई है, चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, आज दीदार हो तो कैसे हो? सारे लोग यही तमन्ना रखते हैं, सारे लोग यही आरज़ू रखते हैं। हज़रात गिरामी जानते हैं गोया कि सबने बैग ज़बान यही कहा होगा, सबके दिल की यही इल्तिजा होगी। बरेली के इमाम की नजर पड़ी इस वाक़े पर तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि सारे ज़माने के लोग प्यारे आका के चेहरे के दीदार के मुश्ताक है। जब सारा ज़माना प्यारे आका के चेहरे का दीदार का मुश्ताक है, लेकिन हज़रत शीमा ने उस चेहरे मुस्तफा पर नकाब और चादर ऐसी डाल रखी है कि कोई दीदार नहीं कर सकता। आखिर देखे तो कैसे देखे? चेहरे मुबारक पर रुख पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, सारे लोग दीदार करना चाहते हैं। इतने में सबके दिल से एक आवाज निकली और वो आवाज ऐसी थी कि जो बाबे इजाजत से टकराती हुई नजर आई। बरेली के इमाम फरमाते हैं सारे लोगों ने बेज़बान यही कहा होगा, ए मेरे मौला मामला तो ये है कि हम भी तेरे महबूब के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, हम भी तेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, हम भी बरकत वाले बच्चे के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। लेकिन दीदार करें तो कैसे करें? इसलिए कि रुखे सेबे पर बाकायदा नकाब और चादर है। ज़बान से इल्तिजा निकली, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब क़िबला, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सारे लोग दीदार करना चाहते हैं। रिवायतों में आता है जब इन लोगों के दिल की आरज़ू तमन्नाएं मचली है, बाबे इजाजत से टकराई है, एक हवा का झोंका आया है, हज़रत शीमा की गोद में प्यारे आका मौजूद है, रुखे सेबा पर पर्दा है, लेकिन हवा का झोंका आया, पर्दा हटा, सारे ज़माने ने रुखे सेबा का दीदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने प्यारे आका का दीदार कर लिया। जैसे पर्दा हटा, हज़रत शीमा ने दोबारा पर्दा डाल दिया। तो बस देख लिया काफी है, अभी नहीं दिखाना है, अभी तो सारी बहनें अपने भाई के हुस्न का तस्करा करेंगी, वहां जलवा दिखाना है। हज़रत शीमा जल्दी से बाकायदा चबूतरे पर पहुंची, जल्दी से 2 मिनट में गुफ्तगू को खत्म करता हो। चबूतरे पर पहुंची, वहां पर सारी बहनें हैं। एक बहन कहती मेरे भाई देखो कितना प्यारा है, मेरे भाई का चेहरा देखो, मेरे भाई की आंखें देखो, मेरे भाई के कान देखो, मेरे भाई के हाथ देखो, मेरे भाई के लभाई मुबारक देखो, मेरे भाई के नाक देखो, मेरे भाई के अबरू देखो। सारी बहनें उस चबूतरे पर बैठकर अपने अपने भाई के हुस्न के तस्करे कर रही थी, अपने भाई के जमाल के तस्करे कर रही थी, अपने भाई की खूबसूरती के तस्करे कर रही थी। ऐसे आलम में सूरज बिल्कुल डूबने के करीब है, सूरज की आखिरी किरणें उस चबूतरे पर पड़ रही थी। हज़रत शीमा ने बाकायदा रुखे मुस्तफा से पर्दे को हटाया, पर्दा हटा, बहनों की नजर रुखे मुस्तफा पर पड़ी। अब
सारी बहनें अपने भाई के जमाल को भूल गई, सारी बहनें अपने भाई के हुस्न को भूल गई। अब सारी बहनें कहती है ए शीमा, ये तो लाल बड़ा प्यारा है, ये तो चेहरा बड़ा प्यारा है, इनके रुखसार बड़े प्यारे हैं, इनकी आंखें बड़ी प्यारी है, इनके अबरू बड़े प्यारे हैं, इनके कान मुबारक बड़े प्यारे हैं, इनके बाल मुबारक बड़े प्यारे हैं। अब सारी बहनें अपने भाई के हुस्न को छोड़ चुकी हैं, अपने भाई के जमाल को छोड़ चुकी है। सारी बहनें मुस्तफा के कसीदे पढ़ रही है, सारी बहनें बरकत वाले बच्चे के कमाल के तस्करे पढ़ रही है। ऐसे आलम में सूरज की आखिरी किरणें रुखे मुस्तफा पर पड़ी, ऊंचाई पर बाकायदा चबूतरे पर हज़रत शीमा है, रुखे मुस्तफा पर सूरज की आखिरी शुआएं पड़ी। बरेली के इमाम से रहा ना गया। बरेली के इमाम फरमाते हैं जैसे सूरज की आखिरी किरणें रुखे मुस्तफा पर पड़ी ना, मुस्तफा के जमाल पर पड़ी ना, मुस्तफा की खूबसूरती पर पड़ी, मुस्तफा के हुस्न पर पड़ी। आज सूरज भी हाथ बांध कर क़यादत के साथ है और ज़माने हाल से यही कह रहा है या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदो तो भी बरसा दे बरसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सूरज भी हाथ बांध करके मुस्तफा के हुस्न की खैरात मांग रहा है। ये बचपने का आलम है। हजरात इकराम, शान बड़ी निराली है। मुस्तफा की बात कहां से की जाए, इसी की सबसे पहले तखलीक हुई है तो अल्लाह ने अपने नबी के नूर ही को बनाया है, अपने नूर से नूर को बनाया है। अखबिरनी या रसूल अल्लाह, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने यही तो कहा था कि हमें या रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमाते कि अल्लाह ने तमाम चीजों के सबसे पहले किसको बनाया है, कौन सी चीज है? क्या जवाब दिया? अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। सर्वप्रथम ईश्वर ने कायनात में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अगर किसी चीज की रचना की है तो वो मुस्तफा का नूर। हज़रात इकरामी, उसी नूर का हम जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस नूर की तारीफ करने के लिए आए हैं, उस नूर का जिक्र करने के लिए आए हैं जिसके लिए खुसूसी तौर